students, how are you all? So welcome you all again in Maximus, a digital learning platform to provide you quality education. Here me and my team prepare a quality content for you to empower you with the best of the best knowledge. So this is not going to help you to clear all your concept, but also going to make you learn fast, right? So in today's session, we are going to do previous year question papers for limits, right? So in this session, we are going to do previous year JEE main and advanced previous year question paper, correct? So let's begin the topic. So we have the first question. So the first question is that limit x tends to 0, x plus 2 plus sin x divided by under root में कुछ x square plus 2 sin x plus 1 minus under root में sin square x minus x plus 1. This question was asked in 2019 में April settings, right? So let's start the question. Let's first think about the question, how to go ahead with this question. Then we'll start the process. So in this question, I can see if I put the value of x in numerator and denominator, so upside will be 0 and 0 upon, say 0 1, this is the 1 upon 1. So this is the 0 by 0 indeterminate form of 0 by 0 form of limits, right? So we need to process accordingly, correct? Right. So this question, limit x tends to 0, x plus, so no need to write, so this is the 0 by 0 form, right? So this is the 0 by 0 form of limit. So first we'll rationalize the expression, okay? Then we start to solve the question. So our expression is x plus 2 sin x divided by under root x square plus 2 sin x plus 1 minus under root of sin square x minus x plus 1, right? So what we'll do is rationalize कर देंगे, right? So this will be x square plus 2 sin x plus 1 plus this will be sin square x minus x plus 1 divided by under root x square plus 2 sin x plus 1 plus under root sin square x minus x plus 1, right? So this will comes to, ये क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा x plus 2 sin x into under root x square plus 2 sin x plus 1 plus under root sin square x minus x plus 1 and denominator में होगा, so the a square minus b square का फॉर्म है, तो डिनोमिनेटर में होगा x square plus 2 sin x plus 1 minus sin square x, so minus minus plus and minus plus minus, this will be minus 1, right? ये निकल के आएगा, तो कुछ तो कैंसिल होते हुए दिख रहा है, तो 1 1 बार कैंसिल, एक एक तो कैंसिल हो रहा है, ठीक है? और यहाँ पे ये आ रहा है एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स एंड 2 साइन एक्स, इस तरीके से कुछ फॉर्म बन रहा है, ठीक है? तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो दिस इज एक्स प्लस 2 साइन एक्स, राइट? सो दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट ऑफ sin square x minus x plus 1, right? So this is x square minus sin square x, this is 2
अब इस टर्म में हम लिमिट लेते हैं, ठीक है। सो इस टर्म में मैं लिमिट लेता हूँ, राइट। इस टर्म में लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे विल पुट द वैल्यू ऑफ x टेंड्स टू, x का वैल्यू अगर 0 पुट करूँगा, सो दिस टर्म इज 0, दिस टर्म इज 0, सो एंटायर देखोगे तो दिस इज अगेन 0 का 0 का फॉर्म, राइट, इंडिटरमिनेट फॉर्म। नाउ विल यूज l'Hopital's रूल, ठीक है, अप्लाई l'Hopital rule, right, differentiate numerator and denominator, right। तो अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सो दिस इज अ टर्म a, दिस इज अ टर्म b, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करो, तो पहले फर्स्ट टर्म को डिफरेंशिएट करो, सो दिस विल बी 1 प्लस 2 cos x, राइट, और इधर होगा सेम टू सेम टर्म, ये सेम टू सेम टर्म इधर आ जाएगा, राइट। सो एज इट इज ये वाली टर्म आ जाएगी, प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी x प्लस 2 sin x, राइट, और ये वाले टर्म को मैं डिफरेंशिएट करूँगा, ठीक है। बट इस वाले टर्म को डिफरेंशिएट करने से हमें कोई फ़ायदा होना है क्या? बिकॉज अगर मैं लिमिट बाद में लिमिट अगर पुट करूँगा, सो एंड इन दैट केस दिस विल बी 0 एंड दिस विल अगेन बी 0, सो एंटायर टर्म इज गोइंग टू बी 0, ठीक है। अगर मैं बाद में लिमिट का वैल्यू पुट करूँगा, ये टर्म तो 0 रहना है, तो डिफरेंशिएट करने से हमें कोई यूज नहीं, विल नॉट डिफरेंशिएट, ठीक है, विल नॉट डिफरेंशिएट, बिकॉज क्योंकि डिफरेंशिएट करोगे इस पूरे टर्म को, तो ये टर्म पूरा का पूरा ये जो टर्म है उसको 0 ही कर देगा, ठीक है। सो डिवाइड बाय डिनोमिनेटर को मैं डिफरेंशिएट करूँगा डायरेक्टली, ठीक है। सो दिस विल बी 2x एंड दिस विल बी माइनस 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। साइन स्क्वायर x का डिफरेंशिएशन 2 sin x एंड इंटू cos x, ठीक है, प्लस 2 cos x प्लस 1, ठीक है। अब नाउ पुट द वैल्यू, है ना, नाउ टेकिंग लिमिट्स, नाउ लिमिट ले लो, है ना, नाउ टेकिंग लिमिट, क्योंकि अब ये डिनोमिनेटर में cos है, तो दिस इज नॉट 0, सो नॉट दिस इज नॉट इन 0 बाई 0 फॉर्म, तो मैं इसमें लिमिट लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं लिमिट लूँ यहाँ पे, है ना, इस टर्म में लिमिट x टेंड्स टू 0, इस टर्म में अगर मैं लिमिट लूँ, सो दिस इज cos 0 इज 1, सो 1 प्लस 2 इज 3, सो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 इज डायरेक्टली 3, ठीक है। और इस तरफ आ जाएगा दिस सेम टर्म, राइट। सो दिस इज 0, दिस इज अगेन 0, दिस इज 1 अंडर रूट 1 एंड दिस 2 टर्म इज 0 अंडर रूट 1, सो 1 प्लस 1 इज 1 प्लस 1, राइट। एंड डिनोमिनेटर में क्या निकल के आ रहा है, सो टेकिंग 0, तो दिस टर्म इज 0 and this term is again 0, this term is 0, 0 into 2 into 0, this term is again 0, right, but this term is going to be 2, cos 0 is 2 1, so 2 into 1 1, so this is 2 plus 1, right। तो दिखते हुए क्या दिख रहा है, ये दोनों कैंसिल हो रहा है, so 1 plus 1 is 2, so do we have 2 as option? Yes, we have the 2, so the 2 is our answer, right। By this way we solve the first question, correct, right। next move करूँ, very good, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 1, दिस इज x स्क्वायर माइनस ax प्लस b अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू 5 एंड देन a प्लस b इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये सारे कुछ वैल्यूज दिए हुए हैं, राइट। सो दिस क्वेश्चन वी आर आस्क्ड इन अगेन 2019 मेन एग्जामिनेशन, राइट। सो सिंस ऑलरेडी वैल्यू इज गिवन, मीन्स ये लिमिट में अगर मैं बात करूं, तो अगर लिमिट पे ऑलरेडी लिमिट की वैल्यू दी हुई है, मतलब लिमिट एग्जिस्ट तो करती है, राइट। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो x माइनस 1 जो है डिनोमिनेटर है, दिस इज गोइंग टू बी x माइनस 1, दिस इज गोइंग टू बी 0 एंड दिस इज अगेन गोइंग टू बी 0, ठीक है।
तो x माइनस वन जो है, सो दिस शुड बी वन ऑफ द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो इफ दिस इज जीरो एंड दिस इज जीरो, सो x माइनस वन शुड बी वन फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी। इसका एक फैक्टर जो है सो x माइनस वन होना चाहिए, ठीक है। सो व्हाट विल डू कि हम एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी शुड बी जीरो, राइट, इफ एक्स इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो एक्स में वन का वैल्यू पुट करूँगा, दिस इज वन माइनस ए प्लस बी शुड बी जीरो, राइट। तो अगर मैं बात करूँ, दिस इज वन प्लस बी शुड बी ए, तो ए की वैल्यू हमें कुछ वन प्लस बी निकलते हुए दिख रहा है, ठीक है। नाउ हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, करेक्ट। तो हमें क्या करना है, हमें ए प्लस बी की वैल्यू निकालना है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, है ना, ए की वैल्यू मैं इस लिमिट में पुट करता हूँ, करेक्ट। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ ए इन दिस लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ए की वैल्यू कितनी आ रही है, वन प्लस बी, सो दिस इज वन प्लस बी, दिस इज एक्स प्लस बी अपॉन एक्स माइनस वन, ठीक है। तो अगर देखोगे तो दिस इज लिमिट x टेंड्स टू वन, ठीक है, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस वन, सॉरी दिस इज नॉट माइनस वन, दिस इज x, ठीक है। ये कुछ x है, ठीक है, और ये आ रहा है कुछ बी एक्स, ठीक है, ये कुछ b आ रहा है, और नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस वन आ रहा है, ठीक है। तो व्हाट वी कैन डू, और ये कितना के बराबर है, दिस इज इक्वल्स टू वन। तो अगर मैं x में x कॉमन ले लूँ यहाँ से, सो दिस इज x माइनस वन, और यहाँ पे अगर b कॉमन ले लूँ प्लस b, तो दिस विल बी b कॉमन ले लूँ तो x प्लस वन। ये कुछ ऐसा होते हुए दिख रहा है, ठीक है। सो वन प्लस बी, ठीक है, एंड डिवाइड बाय x माइनस वन, सो दिस इज इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। तो फ्रॉम अगर x की वैल्यू अगर मैं वन पुट करूँ, तो अगर डिफरेंशिएट करूँ, तो अगर अब मैं लॉपिताल रूल अगर यूज करूँ, तो माइनस वन एंड एक्स प्लस बी, ठीक है। सो वन प्लस बी दिस इज राइट, ये तो सही आ रहा है ना, अगर ये सही आ रहा है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी, जस्ट वेट, अगर ये वैल्यू ये आ रही है, ठीक है, एक्स की वैल्यू अगर एक्स की वैल्यू बी एंड बी में अगर कन्वर्ट करूँ एक्स की वैल्यू को, तो ये निकल के आ रहा है हमें, so if you put the value of b into x, so this will be ये I think कुछ प्रॉब्लम है, yes, so this is not plus, this is plus नहीं है, ये है ना, ये this is minus, so this is minus, right। तो ये क्या होगा, so this is plus b and this प्लस बी अगर मैं कॉमन लूँ तो x माइनस वन आ जाएगा, राइट। तो दिस विल बी x माइनस वन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू वन शुड बी x माइनस वन इंटू, ये भी माइनस ही होगा, है ना, ये भी माइनस ही होगा, सो दिस इज माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी अपॉन एक्स माइनस वन, सो दिस टू गॉट कैंसिल, ठीक है। तो अगर आप लिमिट की वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये बोथ कैंसिल, अगर लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो वन माइनस बी इक्वल्स टू फाइव, ठीक है। तो बी इक्वल्स टू कितना आ रहा है, बी इक्वल्स टू इधर आ गया, फाइव इधर आ गया, तो माइनस फोर, तो बी की वैल्यू कुछ तो फाइव माइनस फोर आ रहा है, ठीक है। तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ बी इंटू माइनस फोर इन दिस इक्वेशन, ठीक है। बी की वैल्यू पुट कर दो, वन माइनस फोर इज इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो दिस विल बी माइनस थ्री इक्वल्स टू ए की वैल्यू कुछ माइनस थ्री आ रहा है, बी की वैल्यू माइनस फोर आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, ए प्लस बी, सो दिस इज माइनस थ्री माइनस फोर इक्वल्स टू माइनस सेवन,
So this is our answer, right? So by this way we can solve the question, right? So we'll move to another question, right? By this आप देख रहे हो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है ना, इफ योर फंडाज आर क्लियर है ना, और इक्वेशंस अगर प्लस माइनस अगर राइट तरीके से अगर इक्वेट करते हो, यू कैन इजीली सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ जे, करेक्ट? सो विल मूव टू अनदर क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन. So another question we have. So this is the next question. This is something limit x tends to 1, x4 minus 1 upon x minus 1 is equals to limit x tends to k, x cube minus x k cube, x square minus k square, then value of k is how much, right? And this question we are also asked in 2019 main exam, right? So let's start the question. So अगर मैं देखूं तो we can we write this as, से मैं क्या x square minus 1 into x square plus 1 डिवाइड बाय x minus 1 लिख सकता हूँ. तो अपन LHS एंड RHS बाद में डील करेंगे. फर्स्ट विल डू डील विद LHS, ठीक है? LHS करो, है ना. लिमिट x टेंड्स टू 1, तो this again can be factorized as x minus 1 into x plus 1, and this is x plus square plus 1 divided by x minus 1, right? तो मुझे क्या दिख रहा है, this we can cancel out, right? So यहाँ पे हमें limit x tends to 1 और x plus 1 and this is x square plus 1, तो वैल्यू निकलते आ रहा है. So this is 2 1 2 and this is again 2, ठीक है? and this is again 2. so ये तो 4 LHS में 4 निकल के आ रहा है, ठीक है? so now we'll move to RHS. RHS देखते हैं क्या है RHS में, ठीक है? तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का इक्वेशन कुछ निकलते हुए दिख रहा है, ठीक है? तो हम इक्वेशन को देखते हैं, ठीक है? RHS में क्या है. so this is x tends to k, a क्यूब माइनस बी क्यूब, so this will be x minus k, ठीक है, into x square plus kx plus k square. We can we write like this? I think we can write this, and this is again a square minus b square, so x minus k, ठीक है, and this is x plus k. तो x minus k कैंसिल, ठीक है? तो ये कुछ टर्म निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर. अब k की वैल्यू अगर पुट करो, है ना, टेकिंग लिमिट्स, तो हमें क्या निकल के आएगा, सो दिस विल बी k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइड बाय, सो दिस विल बी 2k, करेक्ट? सो दिस टर्म इज 3k स्क्वायर अपॉन 2k. तो k एंड k गॉट कैंसल, एक k कैंसिल हो गया, ठीक है? और we got 3k by 2 is equals to how much is 4, ठीक है? अब LHS एंड RHS को इक्वल कर दो. LHS is equals to RHS जो कि दिया हुआ था, ठीक है? तो 4 is equals to 3k upon 2. so k की वैल्यू कितने निकल के आ रही है, k equals to 8 by 3. ऐसा तो कुछ आ रहा है, ऐसा कुछ है क्या? yes we have D. so the answer of this question is D, ठीक है? हमने कुछ भी नहीं किया, बेसिक कॉन्सेप्ट को लगाया, ठीक है, एंड वी गॉट द सॉल्यूशंस, राइट? सो नेक्स्ट विल मूव टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, राइट? सो व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0 sin square x, राइट? एंड डिनोमिनेटर में है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 1 प्लस कॉस x इक्वल्स टू हाउ मच. तो ये तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं इसमें, है ना? तो अगर मैं डिनोमिनेटर एंड नोमिनेटर दोनों में अगर मैं 0 x को अगर 0 पुट करूँ, सो ऊपर में डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा, नीचे अंडर रूट 2 माइनस अगेन 1 अंडर रूट 2, तो 0 बाई 0 का फॉर्म है, ठीक है? सो दिस इज अगेन 0 बाई 0 का फॉर्म, ठीक है? सो दिस लिमिट इज अगेन 0 बाई 0 का फॉर्म, राइट? सो दिस इज अगेन इंडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट. तो इसमें मुझे व्हाट वी कैन डू, लेट्स पहले सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन, देन विल पुट द लिमिट, राइट? ठीक है?
So let's simplify this. Sin square x divided by under root 2 minus this is the 1 plus cos x, correct? So if this is the 1 plus cos x, 1 plus cos x, we can write this as 1 plus cos x, we can what we can write 1 plus cos x, we can write 1 plus cos x को मैं क्या लिख सकता हूँ? So we can write 2 cos square x by 2. So we can write this as it is. ठीक है, मैं इसे ये लिख सकता हूँ. तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये साइन स्क्वायर x दिख रहा है, ठीक है, और ये दिख रहा है अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 cos स्क्वायर x by 2, ऐसा तो कुछ दिख रहा है, ठीक है. तो अपन क्या कर सकते हैं? सो दिस इज साइन स्क्वायर x, ठीक है, अंडर रूट मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, तो दिस इज 1 माइनस अंडर रूट, अब ये अंडर रूट जो है उसको मैं रूट से बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है. तो अगर मैं इसे अंडर रूट से बाहर निकाल लूँ तो दिस विल बी cos x by 2. ये s तो कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है. अब दिस इज अगेन, अगर मैं इसे अगेन सिंप्लीफाई करूँ, सो दिस इज द साइन स्क्वायर x अपॉन अंडर रूट 2, ठीक है, एंड दिस विल बी 2 साइन स्क्वायर x by 4. ये ऐसा तो कुछ निकल के आ रहा है ना. 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 इज 2 साइन एक्स बाई 4, ठीक है. तो व्हाट वी कैन डू, नाउ विल टेक द लिमिट, ठीक है. सो दिस इज द लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ठीक है, एंड दिस इज द साइन स्क्वायर एक्स एंड दिस इज द 2 रूट 2 एंड दिस इज द साइन स्क्वायर एक्स बाई 4, ठीक है. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बोथ में अगर साइन हो तो अगर मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर अगर नीचे कॉमन लूँ, फिर इसमें साइन एक्स स्क्वायर बाय 4 को अगर कॉमन लूँ, सो द टर्म विल बी 1, ठीक है. तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ विल गेट 1. रिमेनिंग हमारे पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर बाय 4 बचेगा, ठीक है. सो विल डायरेक्टली राइट दिस, ठीक है. लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एंड दिस इज द कांस्टेंट, सो दिस विल राइट 2 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर बाय 4, ठीक है. तो एक्स स्क्वायर वर्ड कैंसिल है, 4 विल गो अपसाइड, राइट. तो ये हो जाएगा 2 रूट 2 लिमिट, ये दोनों कैंसिल हो गया, अब तो लिमिट कुछ बचा ही नहीं, ठीक है. सो मल्टीप्लाई बाय इनटू 4, ठीक है. तो दिस विल बी 2, ठीक है. देन सो वी कैन राइट 2 रूट 2, ठीक है. तो रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, है ना. तो दिस विल बी 2 रूट 2 अपॉन 2. सो 2 गॉट कैंसिल, सो वी आर गेटिंग रूट 2. ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, रूट 2, हाँ वी आर गेटिंग. सो दिस इज आवर आंसर, ठीक है. सो बाय दिस वी कैन सॉल्व, वी हैव सॉल्व द इक्वेशन, ठीक. आई थिंक हमने सही किया है. हमने क्या किया है ना, उसमें मैं करूँ, ठीक है. 2 रूट 2 तो एक्स स्क्वायर एंड ये तो 16 हो जाएगा ना, ये 16 हो जाएगा, सॉरी दिस टर्म इज गोइंग टू बी स्क्वायर होना है, ठीक है. तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी 16 होगा, है ना. सो दिस इज नॉट 4, तो यहाँ से थोड़ा सा मैंने गलत कर दिया, है ना. यहाँ से मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया. सो दिस टर्म विल बी 16, ठीक है. तो 16 will be outside, so this will be 16 by 2 root 2. So this is 8, ठीक है. This is 8 root 2, 8 by root 2, ठीक है. मैं root 2 से फिर से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है. अब चीज़ें देख रहे थे, है ना, क्या प्रॉब्लम हुई. अगर थोड़ा सा अगर ध्यान ना दो, है ना, तो क्या प्रॉब्लम होती है ना. एक 2 मार्क का क्वेश्चन हमारा हमें आते हुए हम गलत कर देते हैं, राइट. सो दिस इज 4 रूट 2, आंसर विल बी 4 रूट 2. आंसर इज नॉट रूट 2, आंसर इज 4 रूट 2, ठीक है. बाय दिस वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट. नाउ विल मूव टू अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन, राइट. चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, है ना. लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन, ठीक है.
अब ये क्वेश्चन भी जो कुछ दिया हुआ है, लिमिट y टेंड्स टू 0 अंडर रूट 1 प्लस वाई फोर माइनस रूट टू डिवाइड बाय एक्स वाई टू पावर 4, राइट। अब मैं अगर लिमिट सेट करूं, ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी लिमिट के क्वेश्चंस आए तो उसमें y की वैल्यू है ना पुट करके देखो कि कौन सा फॉर्म में लिमिट है। सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ y इन दिस लिमिट, सो दिस विल बी 1 प्लस दिस विल बी 0, एंड अगर डिनोमिनेटर में 0 है, दिस इज द रूट टू माइनस रूट टू 0, तो दिस इज इन 0/0 फॉर्म, ठीक है। तो 0/0 के फॉर्म में है ये लिमिट, ठीक है। सो दिस लिमिट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0 फॉर्म। तो नाउ हमें क्या करना है, रैशनलाइज करना है। पहले फॉर्म को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देन विल टेक द लिमिट्स, राइट। तो व्हाट वी कैन डू, लेट्स सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन। सो द 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y4 माइनस रूट 2 अपॉन y4। तो मैं क्या करता हूँ, इसको रैशनलाइज करता हूँ, ठीक है। तो 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y4 प्लस रूट 2 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट y प्लस y पावर 4 प्लस रूट 2। कुछ तो क्लियर हो रहा है ये, प्लस माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस अंडर रूट 1 प्लस y4 एंड दिस विल बी -2, ठीक है। एंड नीचे हमारे पास आ रहा है दिस इज y4 एंड अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y4, राइट, प्लस रूट 2। ये तो ऐसा तो कुछ निकल के आ रहा है, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करो तो दिस विल बी अंडर रूट 1 प्लस y4 माइनस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में क्या है, दिस इज y4 अंडर रूट 1 प्लस अगेन अंडर रूट 1 प्लस y4 प्लस रूट 2, राइट। ये कुछ तो ऐसा बन के आ रहा है, बट अगेन अभी भी ना ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, क्योंकि अगर मैं लिमिट इसमें पुट करूँ तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, एंड यहाँ पे पुट करूँ तो ये भी 0/0 का फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो हमें इसको और सिंप्लीफाई करके देखता हूँ मैं, है ना, कुछ ना कुछ निकल के आएगा, ठीक है। सो विल अगेन रैशनलाइज दिस टर्म, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, है ना, 1 प्लस y4 1 प्लस y4, दिस इज y4 y टू पावर 4, ठीक है, अंडर रूट y टू पावर 4 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 1 प्लस y4 प्लस 1 कर देता हूँ, है, एंड अंडर रूट 1 प्लस y टू पावर 4 प्लस 1, एंड डिनोमिनेटर में क्या था, सो y4 अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट y अंडर रूट दिस इज अंडर रूट अगेन 1 प्लस y4, ठीक है, एंड प्लस रूट 2, ऐसा था ना, हाँ, प्लस रूट 2, ठीक, प्लस रूट 2। ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक साथ, ठीक है, ये तीनों टर्म मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और ये जो मैंने मल्टीप्लाई किया है यहाँ पे, है ना, ये जो मल्टीप्लाई किया है अपन ने, ठीक है। सो दिस विल बी 1 प्लस, अगर सिंप्लीफाई करूँ मैं इसे, है ना, लेट सिंप्लीफाई हियर ओनली, अगर इसे मैं सिंप्लीफाई करूँ ये हो जाएगा 1 प्लस y4, है ना, माइनस 1, ठीक है। और डिनोमिनेटर में ये सारे बड़े टर्म्स जो है ना ये होगा, ठीक है। तो 1 एंड 1 कैंसिल हो रहा है, दिख रहा होते हुए दिख रहा है। तो न्यूमरेटर में क्या बच रहा है हमारे पास, बच रहा है ओनली y4। तो y4 अगर ये है एंड नीचे में y4 मल्टीप्लिकेशन में हुआ है, बाकी सारे टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट। सो वी कैन कैंसिल आउट दिस बोथ y4 एंड y4, ठीक है। अब डिनोमिनेटर जो भी बचा है हमारे पास डिनोमिनेटर में बचा है। नाउ लेट्स टेक द लिमिट, है ना, लिमिट y इक्वल्स टू y टेंड्स टू 0 1 अपॉन हाउ मच, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस y4, ठीक है, प्लस रूट 2, ठीक है, ऐसा तो कुछ है, इंटू अंडर रूट 1 प्लस y4 प्लस 1, ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। नाउ टेक द वैल्यू, नाउ टेकिंग लिमिट्स, तो क्या होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस विल बी 1 अपॉन, अगर मैं लिमिट लूँ तो अंडर रूट में दिस इज 1 एंड दिस टर्म इज 0, 1 प्लस 1 ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, एंड प्लस एंड बाहर में है ये प्लस, सो दिस इज नॉट लाइक दिस, ये कुछ ऐसा आएगा, है ना, 1 अपॉन, सो दिस इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस दिस इज 1, ठीक है, अंडर रूट 1 मतलब 1 ही हो गया, ठीक है,
और ये पूरा का पूरा टर्म नहीं है ना, एक छोटा सा हमें प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। सो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1, मैंने y 0 कर दिया, ठीक है, प्लस रूट 2, अगेन यहाँ पे भी रूट 2 आ रहा है, ठीक है, और इनटू कुछ आ रहा है ना। सो रूट 2 प्लस रूट 2 मीन्स है ना, इनटू में अगर मैं ये करूँ तो दिस इज रूट मतलब 1 प्लस 1, ठीक है, सिंपली इतना बोलो, ये आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या निकल गया ना 1/2 रूट 2, ठीक है, रूट टू 2 है ना, तो 2 रूट 2 इंटू 2, तो इंटू 2, सो दिस वॉट बी 1/4 रूट 2, ऐसा कुछ आ रहा है, ठीक है, कुछ है क्या ऐसा 4 रूट 2, 1/4 रूट 2, yes exist and equals to 1/4 root, so the option A is right, ठीक है। by this we can solve this question, ठीक है। how was this question was good, ठीक है, हमें थोड़ा सिंप्लीफाई ज़्यादा करना था, ठीक है, and by this we have solved this question, right। now we'll move to another set of question in limits, ठीक है। so this is going to be interesting again, right। तो let's do question this, ठीक है। let f r tends to r, ठीक है, to be the differential function, एक differentiable function satisfying f dash 3 and plus f dash 2 equals to 0, ये तो कुछ दिया हुआ है ना। so this we have given, ये term we have given, ठीक है। then limit of कुछ ये बड़ा सा term है, limit of x tends to 0 1 plus f 3 plus x minus f3, डिनोमिनेटर में कुछ 1 प्लस इतना कुछ है, पावर में इसके पावर में 1 प्लस एक्स। सो इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, सो व्हाट विल गेट, अगर मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँ तो 1 प्लस f3, वो तो जी एक्स तो 0 हो जाएगा, एंड माइनस f3, तो दिस 2 गॉट कैंसिल, ये तो कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक है, और ये तो कुछ कैंसिल हो गया, ऊपर में 1 बच रहा है ना, और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है, डिनोमिनेटर में भी 1 बच रहा है, ठीक है, तो 1 पे पावर कुछ 1/x बच रहा है हमारे पास, राइट। सो इफ यू पुट द वैल्यू, अगर x की वैल्यू और पावर में पुट करूँ तो 1/0 इज हाउ मच, दिस इज इन्फिनिटी, so this is the 1 का पावर infinity form, so and this is the indeterminate form of 1 to power infinity, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन यहाँ पे यूज करके कुछ ना कुछ यूज होगा, ठीक है, तो लेट्स डू बाय दैट वे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि कुछ यूज होना है कि नहीं होना ये वाला टर्म का, राइट। सो लेट्स डू बाय दैट वे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम यूज करते हैं, ठीक है, और we process with this question, right। so our function is this, so this is limit x tends to 0, function is 1 plus f 3 plus x minus function 3 plus x, denominator में है this is 1 plus f 2 minus f of x minus f of 2 1 power x, ठीक है। so let the function, let the expression L, let the L equals to ये पूरी term like this, so this is the 1 plus function of 3 plus x, ठीक है, minus f 3 plus x, ठीक है, this is not 3 plus x, this is only 3, ठीक है, so this is only 3 upon, so this will be x plus f of 2 minus x minus f of 2, कुछ इस तरीके से तो बनते हुए ये हमारा टर्म है, राइट। अब हमें क्या करना है कि हमें अगर मैं ये करूँ तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में अगर कन्वर्ट करना है टू द पावर एंड टू द पावर 1/x, तो वो लॉग के फॉर्म में ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस विल बी समथिंग, ये कुछ ऐसा बनेगा, है ना, 1 प्लस एफ ऑफ 3 प्लस एक्स एंड एफ ऑफ 3 अपॉन 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स माइनस एफ ऑफ 2, ये कुछ तो ऐसा बनेगा, है ना, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के फॉर्म में। सो दिस विल बी लिमिट x टेंड्स टू एक्सपोनेंट में x टेंड्स टू 0, e पे पावर लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0, एंड कुछ ये फॉर्म में आएगा ये, ठीक है, 1 माइनस एक्स, है ना, ये 1 माइनस एक्स के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो इस टर्म को एक बार सिंप्लीफाई करते हैं, देन वी विल अगेन कम टू दिस पॉइंट, राइट। ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, राइट, तो दिस विल बी 1/x, ठीक है। तो अगर 1 माइनस दिस है तो विल टेक एलसीएम, है ना, एलसीएम विल बी 1 प्लस एफ ऑफ 2 माइनस एक्स एंड माइनस एफ ऑफ 2, ठीक है। सो दिस विल बी 1 प्लस एफ ऑफ
2 minus x minus f of 2 minus 1 minus f of 3 plus x, ठीक है। एलसीएम वी आर टेकिंग एलसीएम माइनस एफ ऑफ 3, कुछ इस तरीके से आ रहा है, ठीक है। सो कुछ कैंसिल होकर दिख रहा है, यस 1 1 गॉट कैंसिल, एक एक तो कैंसिल हो गया, ठीक है। एंड और कुछ दिख रहा है हमें, है ना, एनीथिंग एल्स कैन वी सी, एनीथिंग एल्स नहीं, अब कुछ नहीं दिख रहा है। लेट्स सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, है ना। सो दिस इज 1 अपॉन x, है ना। सो दिस विल बी f ऑफ 2 minus x minus f of 2 minus f of 3 plus x minus f of 3, ठीक है। एंड डिनोमिनेटर में दिस विल बी f of 2 minus x, ठीक है, minus f of 2, ठीक है। सो इफ यू सी दिस इज अगेन, यू नो, है ना, अगर मैं इसमें x टेंड्स टू 0 करूँ, ठीक है, तो ये क्या आने वाला है ना, सॉरी, दिस 1 upon x will be the power at, so this will be at the power of here 1 upon x, 1 upon x के पावर में आएगा, ठीक है। एंड लिमिट विल टेक, तो ये अगेन इस तरीके से आ रहा है। तो अगर मैं पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट x की वैल्यू 0 करूँ, तो सो दिस 2 विल बी 0 एंड दिस 2 अगेन विल बी 0, राइट। एंड दिस विल बी प्लस, सॉरी, सिंप्लीफाई करूँ तो प्लस होगा, ठीक है। एंड अगेन डिनोमिनेटर में अगर करूँ तो x की वैल्यू 0.1 आ रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू अगर मैं डायरेक्टली अगर पुट कर दूँ तो दिस विल बी 0, राइट। तो लेट्स डिफरेंशिएट अगेन, है ना। इसको अगर डिफरेंशिएट करूँ ये कितना आएगा, ये दिस विल बी f ऑफ 2 minus x, ठीक है, और कंप्लीट फंक्शन है, ठीक है। सो दिस विल बी f of 2 into 2 of f of 2, ठीक है। ये आएगा, है ना, ये आएगा, यस। एंड ये क्या आएगा, ये तो 0 हो गया, एंड ये क्या आएगा, माइनस f डैश 3 प्लस x, ठीक है। एंड ये क्या आएगा, f of 3, ठीक है, ये आएगा। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, सो दिस इज 0, है ना, कांस्टेंट फंक्शन 0, दिस इज f डैश 2 minus x एंड दिस विल बी f of 2 minus 2, ठीक है। तो now here we'll take the limit। अगर मैं यहाँ पे लिमिट लूँ, लिमिट एक्सपेंसिव 0 लूँ, तो दिस टर्म विल बी 0, तो ये 0 आएगा, है ना। तो दिस टर्म इज गोइंग टू बी 0, ये तो 0 हो गया, एंड दिस अगेन गोइंग टू बी 0, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आ रहा है ये, है ना। ये पहला टर्म ये था, दूसरा टर्म ये था, ठीक है ना। तो हाँ, सॉरी, डिफरेंशिएशन तो यहाँ पे आएगा ना। f of ये कुछ इस तरीके से आ रहा था, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से आ रहा था। तो ये दोनों टर्म तो 0 हो गए, ठीक है। अगर ये दोनों टर्म 0 है, प्लस, सॉरी, दिस इज प्लस आएगा, सॉरी। तो ये कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, f ऑफ f डैश 3 f of 2 minus f of minus 3 अपॉन, है ना, ये क्या आ रहा है, माइनस 1 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है, सो दिस वैल्यू इज गिवन टू 0, ठीक है, दिस वैल्यू इज गिवन टू 0, है ना। तो ये तो कुछ 0 हो रहा है, ठीक है। सो नाउ हमें क्या आ रहा है, e टू द पावर कुछ 0 निकलते हुए 0 into 1, तो कुछ 0 आ रहा है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई करूँ 1/x में 0 से, है ना, तो अगर e टू द पावर 1/x में अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। so e टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1 आ रहा है, कुछ तो ऐसा कुछ नहीं है, 1 we have, yes we have 1, ठीक है। so by this way we solve this question again, ठीक है। समझ में आया, है ना। हमने क्या किया, ये 1 to the power infinity का फॉर्म था इन इंडिटरमिनेट फॉर्म, सो वी सॉल्व दिस बाय यूजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। हमने कन्वर्ट कर दिया उसमें, ठीक है। बाय दैट उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किया, एंड हियर वी टेक l'Hopital's रूल, है ना, हियर वी टोल्ड टेक l'Hopital रूल, ठीक है। डिफरेंशिएट कर दिया फंक्शन को, सो वी गॉट 0, तो 0 into 1 raised to power 0 to 0, तो e is power 0 हो गया, सो दिस इज व्हाट वी वांट, ठीक है। बाय दिस वी सॉल्व द इक्वेशन, ठीक है। लेट्स टेक अनदर सेट ऑफ क्वेश्चन, है ना। सो वी डोंट हैव क्वेश्चन नाउ, थैंक यू।
So if you like the video, please like this, share this, and subscribe our channel, so that you get continuous updates about our your quality video, quality questions, and quality answers, right? Everything you get. So thank you very much. If you like the video, please like it, share it, and subscribe it. Thank you.